हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਤਵੀਰ ਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਓਅੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਮਤਲਬ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੱਖਣ ਦਕਸ਼ਿਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ। ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਬੰਦ ਜਾਂ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। 54 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 54। ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। 3 ਵਾਰਾਂ ਆਸਾ, ਮਾਝ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੱਲ 54 ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਦੀਪ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅੱਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਦੀਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦਵੀਪ ਟਾਪੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਆਪ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਚਤੁਰਦਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। 54 ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ, 54 ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ।
ओंकार इस बाणी का नाम है। रामकली दखणी राग दे विच ये बाणी है जिहड़ी ये रची गई है। लो जी गल हो गई क्लीयर है। अगे आप एक ना होर पढ़ते हैं अष्टपदी है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਤਲਬ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ पद जिमें आप कह दें अष्टपदी। 8 पदे है ना। पदे मतलब की होंदा? पदा, पदा तो भाव होंदा है तुक समूह ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਸਮੂਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦੀ, ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਦਾ ਜਾਂ ਪਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬੰਦ। ਸੋ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੌਪਦੇ ਮਤਲਬ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਪਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ 3 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, 2 ਪਦੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, 1 ਪਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 1 ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਦ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ 8 ਪਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ? 8 ਦਾ ਹੈ, ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮः, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮः, ਸਤ ਗੁਰ ਏ ਨਮः, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮः। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 5। मतलब की है भी पंक्तियां 10 बनदियां, 5 दूनी 10। एक पद समूह दे विच, एक पद समूह दे विच 2 पंक्तियां है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਦਾ। हाँ, अष्टपदी के बारे आरंभ मतलब की है भी 24 अष्टपदियां दे विच यह रचना की गई है। 24 अष्टपदियां इहदियां सुखमनी साहिब दियां ते 24 ही श्लोक है। 24 ही श्लोक है। श्लोक भी काव्य रूप है, अष्टपदी भी काव्य रूप है ना, दोनों ही काव्य रूप है। अष्टपदी की आप गल कर चुके हैं। श्लोक का मतलब होंदा किसी की प्रशंसा सिफत सलाहगा करनी है ना। श्लोक श्लोक आरंभ दे विच दिता होया, फिर अष्टपदी है, फिर आरंभ च श्लोक, फिर अष्टपदी, इस तरह दिता होया। ते जिवें की है श्लोक देता उस तो बाद अष्टपदी शुरू होगी। 8 पदे है उहदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 8 पदे लिखे गए हैं। ठीक है जी। ते उस तो बाद देखो हर एक पदे दे विच एक पहला जिवें पदा है उहदे विच 10 पंक्तियां है। 10 पंक्तियां, बड़ा शानदार है विधान। एक अष्टपदी समझ लो तो सारा सुखमनी साहब समझ दे विच आ जाता है।
एक 10 पंक्तियां बनदियां। मतलब की है भी तुक समूह है जिहड़े 5 बन जाते हैं। कहने का मतलब 5 दूनी 10 है ना। तुक समूह भी होना चाहिए। 1 बंद 2 बंद 5 बंद है। 5 बंदा दे विच 10 पंक्तियां, 1 बंद दे विच 2 पंक्तियां। पंक्ति भी तो होनी चाहिए है ना, जिहदे नाल काफिए मिलन ते जिहदे नाल प्रॉपर लगे भी कविता है। 10 पंक्तियां हर एक दे विच ही है। इहदे च भी 10 है, इहदे च भी 10 है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10 ਹੈ, 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 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10 ਹੈ। 10-10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ मतलब ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। आ पहला ही श्लोक जोड़ा मैं बोलिया दोहरा छंद नहीं गा। आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। ये दोहरा छंद नहीं गा। 23-24 मात्रा वाला ये छंद नहीं गा। 2 तुकिया छंद है। ये तो 4 तुक्कां बोलतियां मैं, पर लगभग सारा। अगर प्रश्न आ जाए भी इहदा जिहड़ा सुखमनी साहिब दा जिहड़ा श्लोक है, श्लोक लिखे गए हैं वो ज़्यादातर है जिहड़े किहड़े छंद दे विच है, वो दोहरा छंद दे विच लिखे गए हैं। 24 श्लोक है। अगे वैसे मैं दस्सिया भी होया ना ऐप दे विच, जदों मैं वीडियो वगैरह च गल कीती है तो उहदे विच मैं ये गल दस्सी भी है कि जिहड़े साडे हाँ इहदे विच दस्सिया भी है भी किहड़े श्लोकां दा मैं थोड़ा जिहा दस्सिया भी सीगा है ना, भी किहड़े दोहरा छंद तो बाहर है। अच्छा हुण अगली गल देख लो तुसीं। हुण एक अष्टपदी हो गई है ना। एक अष्टपदी दे मतलब 8 पदे है। ये अष्टपदी है। ये पहली अष्टपदी संपन्न, उस तो बाद दूजी अष्टपदी भी है ही है श्लोक। फिर इस तरह करके है सारियां टोटल अंत तक 10-10 पंक्तियां का विधान है। हुण तुसीं कहो भी सर जी एक अष्टपदी च कितनियां पंक्तियां होईयां, तां 10 है, इधरों 8 है। 8 दा 80 पंक्तियां एक अष्टपदी दे विच। सौखा ही काम है। 80 का अध कर लो 40 ये की है तुक समूह जिन्होंने आप कह दें बंद। तुक समूह 40 है जी। हुण ये की है, हुण इहदे विच एक होर तुहानूं मैं गल दसां। एक रहाओ दा एक बारी रहाओ इहदा इस्तेमाल होया है सुखमनी साहिब दे विच जदों आपां पढ़दे हां। तां इहदे विच की है भी पहला पद जिहड़ा हैगा जदों इहदा पहला जिहड़ा पदा है ये खत्म हो जाता है, उस तो बाद दूजे पदे दे आरंभ विच दिता होया है। मतलब की है भी दूजे पदे पहली अष्टपदी का दूजा पदा, पहली अष्टपदी का जिहड़ा दूजा पदा है, दूजे पदे विच रहाओ दी टेक दिती गई है। रहाओ शब्द लिखा होया, उत्थे लिखा सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। उस तो बाद चल जाता है प्रभ कै सिमरन, प्रभ कै सिमरन, इस तरह रिपीट होंदा है। यह जिहड़ी तुहानूं दसी है अष्टपदी की रचना दसी है। जिहड़ी अष्टपदी ते नाल की दसिया तुहानूं जिहड़ा सुखमनी साहिब की रचना है जिहड़ी, क्योंकि अष्टपदी के बारे जे तुसीं जानना है तो उहदे वास्ते सुखमनी साहिब है जिहड़ा बहुत ही शानदार एक मतलब कि जानने वास्ते वधिया है। आरंभ दे विच एक श्लोक, उस तो बाद 24 अष्टपदियाँ, हर एक जिहड़ा मतलब कि अष्टपदियाँ दे विच 8-8 पदे है। एक पदे दियाँ 10-10 पंक्तियाँ बनदियाँ। जे गिणती करनी होवे तो बड़ी सुखाली है। मतलब एक अष्टपदी च दे 80 पंक्तियाँ बनदियाँ, तो 80 नूं 24 दा गुणा कर दो तो सारा सुखमनी साहिब दे विच किन्नियां पंक्तियाँ तुहाडे सामने आ जाणगीआं। होर काम की गल दसदा तुहानूं मैं। होर काम की गल की है भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक बाणी दिती हुई है जिहदा नाम है अलाहणियां। अलाहणियां है जिहड़ी एक सोग काव्य रूप है। तुहानूं पता ही है किसे मरे हुए दी याद विच सोगी हिक्कां लाइयां जांदियां। अलाहणियां दी बाणी है जिहड़ी ਉਹ देखो जी अलाहणियां दित्तियां होईयां टोटल 9। अलाहणियां जड़ियां ਉਹ टोटल अपने दित्तियां होईयां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच टोटल अलाहणियां की गिणती है जिहड़ी ਉਹ 9 है, जिहदे विचों 5 तां गुरु नानक देव जी दीयां रचनावां, 5 अलाहणियां गुरु नानक देव जी दीयां ते 4 है जिहड़ियां ये तीसरे गुरु अमरदास जी दीयां हन।
5 4 9 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 5 ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਵੇਂ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। अगर मैं कहां हुण प्रश्न सुनो भी अलाहुणियां सिरलेख अधीन किन्नियां, अलाहुणियां सिरलेख दे अधीन किन्नियां अलाहुणियां हन, तां तुहाडा उत्तर होना चाहिए जी 5 है। किहड़े गुरु दियां हन जी? एक ही गुरु दियां, गुरु नानक देव जी दियां अलाहुणियां सिरलेख दे अधीन। पर जे आ जे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कुल किन्नियां अलाहुणियां हन जां किन्नियां अलाहुणियां हन, किन्नियां जां कुल किन्नियां, कोई दिक्कत नहीं। कुल शब्द यूज भी कर सकदा, नहीं भी यूज कर सकदा। अगर आवे प्रश्न भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कुल किन्नियां अलाहुणियां दर्ज हन जां कुल छटा के भी किन्नियां अलाहुणियां हन, फिर तुहाडा उत्तर होना चाहिए जी 9। गुरु नानक देव जी दियां 5, गुरु अमरदास जी दियां 4 अलाहुणियां सिरलेख दिता है। गुरु नानक देव जी दियां अलाहुणियां नूं, गुरु अमरदास जी दियां अलाहुणियां दे उपर कोई सिरलेख नहीं लिखिया होया, एवें अलाहुणियां नहीं लिखिया होया, बस इन्ना भी मतलब महला तीजा लिखिया होया। इस करके पता लगता भी गुरु अमरदास जी की रचना हैं। अलाहुणियां पंजाबी का एक की है, सोग काव रूप है ये अलाहुणियां। जदों किसी की मौत हो जाती है तो परिवार संबंधी जिहड़े कीरने पाउंदे आ उन्हां नूं आपां अलाहुणियां कहने आ। भाई कान सिंह नाभा है जिहड़ा वो कहंदा भी अलाहुणियां सलाघा जां उस्तत की कविता का नाम है। भाई कान सिंह नाभा कहंदा भी अलाहुणियां एक सलाघा जां उस्तत की कविता का एक नाम है जी। हाँ, जिहदे विच किसी दे गुण गाए जाते हैं, किसी दे की मरे हुए दे गुण गाए जाते हैं। सो ये अलाहुणियां जिहड़ियां तुसीं बेटा ध्यान रखना है, अलाहुणियां सिरलेख दे अधीन 5 ही है, पर वैसे कुल अलाहुणियां जिहड़ियां ओह टोटल 9 है। ठीक है बई, गल ध्यान दे विच रखनी है तुसीं। होर मैं दस देना तुहानूं भी किहड़ी गल याद विच रखनी है तुसीं। कुल हैगियां 5 अलाहुणियां ते 5 1 2 3 4 5। पहली अलाहुणी दे विच 4 पंक्तियां, दूसरी दे विच भी 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां नहीं सॉरी मतलब 4 पौड़ियां, 4 पौड़ियां दित्तियां अलाहुणियां दे विच। जिवें पहली अलाहुणी दियां 4 पौड़ियां दित्तियां होईयां, थोड़ा जिहा होर डीप कर लईए इहनूं, है ना। दूसरी दे विच भी 4 पौड़ियां दित्तियां होईयां ते तीसरी दे विच दित्तियां होईयां जी 8, चौथी दे विच 4 ते पंजवीं च 5। तीसरी च 8 है, चौथी च 4 है ते पंजवीं च 5 ही है। सही है तुहाडी गल, है ना। सो ये देख लिओ तुसीं इहदा योग किन्ना बनदा, है ना। पंजवीं दे विच चौथी च 4 है ते पंजवीं दे विच सॉरी पंजवीं दे विच भी 4 ही है बई। हाँ, पंजवीं दे विच भी 4 ही है। टोटल इहदा योग जिहड़ा बनदा है 8 तिया 24 बनता। कुल 24 पौड़ियां अंकित हैं इहदे विच। गुरु नानक देव जी दीयां 5 अलाहुणियां दे विच टोटल 24 पौड़ियां अंकित हैं। ये तुसीं ध्यान च रखना। टोटल योग जिहड़ा ज़्यादा ध्यान दे विच रखण वाली गल है। ठीक है जी। गुरु अमरदास जी तुहानूं दस ही दिता भी ये है जिहड़ियां गुरु अमरदास जी दीयां जिहड़ियां 4 अलाहुणियां जिहड़ियां हर अलाहुणी दीयां 4 पौड़ियां दा विधान ही है। गुरु अमरदास जी दीयां जिहड़ियां 4 अलाहुणियां दित्तियां होईयां 1 2 3 4 उहदे विच हर एक दे विच सेम ही है, पौड़ियां 4 ही है। सो 4 चौके 16 पौड़ियां है जिहड़ियां ये गुरु अमरदास जी दीयां हन ते 24 पौड़ियां जिहड़ियां गुरु नानक देव जी दीयां हन। अलाहुणियां दा रखना ध्यान तुसीं। प्रश्न अगर आवे तां ये तुहाडा सही होना चाहिए इहदे विच। लो जी, गल हो गई क्लीयर इहदी। तां अगे होर देखते हैं कुछ जो भी माइंड दे विच आउंदा है।
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਤੀ ਦੀ। ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। आप 10वीं वाली बुक दे विच पढ़िया सी है ना। आरती, आरती शब्द की उत्पत्ति है जिहड़ी ਉਹ ਹੋਏ जी आरात्रिक शब्द तो। आरात्रिक शब्द तो हुई है जी इस दी उत्पत्ति, जिस दा मतलब हुंदा है जो रात तो बिना भी होवे, जो रात तो बिना भी होवे, विदाउट नाइट, रात तो बिना भी होवे, उसनूं कहा जांदा अरात्रिक आरती। आरती दे विच तुहानूं पता ही है भगत रविदास जी का भी शब्द आउंदा है, ते सैन जी का भी आउंदा है, धन्ना जी का भी आउंदा है ना। हुण तुसीं की करिओ, हुणे जस्ट आ वीडियो वेखदे जाओ ते नाल ही 11वीं दी बुक दे विच भगत धन्ना जी साधना अते सादगी दी मूरत भगत धन्ना जी पाठ दिता होया है। उस पाठ दे विच तुसीं देख लिओ भी किहड़े किहड़े भगतां दी बाणी आरती सिरलेख अधीन दर्ज है। ये तुसी देखना है, ठीक है, ये तुहाडी जिम्मेवारी है। प्रश्न बनूंगा इस तरह का कोई, फिर तुसी कहना भी आ की है। अच्छा, भगत धन्ना जी की गल करिए तो वो कहते हैं, भगत धन्ना जी ने लिखा है गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता उन्होंने कहा है। आरती नूं आरता लिखा है। अच्छा, एवें नहीं गा भी आरती स्त्रीलिंग शब्द है तो आरता पुलिंग शब्द हो गया, ये नहीं गा। आरता एक पुलिंग शब्द नहीं गा। आरता का शाब्दिक अर्थ होंदा है, आरता का शाब्दिक अर्थ अगर भगत धन्ना जी के नज़रिए तो देखिए तो वह है कि जो बंदा आहत या पीड़ित व्यक्ति होवे, आहत हो जाए है ना किसी गल तो, आहत होया वा या पीड़ित होया वा, किसी गल की पीड़ा है, उसनूं किसी गल का आहत है, आहत या पीड़ित व्यक्ति के संदर्भ में वरत्या गया है। आरता शब्द है जिहड़ा वो गोपाल तेरा आरता। आरता तो एवें ना समझ लो भी एक पुलिंग शब्द है, पुलिंग नहीं है, ठीक है भाई। ये गल तुसी ध्यान दे विच रखनी, खासकर उपर वाला आरती शब्द है जिहड़ा आरात्रिक शब्द तो बनया होया। इहदा मतलब है भी जो रात तो बिना भी होवे, ठीक है जी। ये गल तुसी ध्यान दे विच रखनी है। एक बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंजुलिया महला 5वां सिरलेख अधीन लिखी गई है। अंजुलिया महला 5वां इस तरह लिखा होया है, महला 5वां। हाँ, ये जड़ी बाणी, अच्छा ये तो पता तो लग गया भी अंजुलिया बाणी है जड़ी वो महला 5वां मतलब 5वें गुरु अर्जन देव जी दी है। एक गल तो क्लीयर हो गई है। दूसरी गल है कि ये विच ये बाणी है जिहड़ी मारू राग दे विच अंकित की गई है। मारू राग दे विच मारू अंजलिया महला 5वां। अंजलि का मतलब हुंदा है, अंजलि का मतलब जिवें बुक, जिवें आपां करके बुक जां डूना हुंदा जिहड़ा, ओदी शक्ल दे विच जोड़े गए हथ, जुड़े हुए हत्थां नूं कहा जांदा है अंजलि, जुड़े हुए हथ अंजलि, ठीक है जी। ये है जिहड़ा तुसीं ध्यान दे विच रखना है। शब्द का वैसे अर्थ आ चुका है, पर यह अंजुलिया जिहड़ी बाणी है गुरु 5वें पातशाह अर्जन देव जी की है, मारू राग दे विच है। मतलब की है अपने पितर देवता नूं आपां कोई प्रणाम अंकित करते हैं हथ जोड़ के, उहदे वास्ते है ना। अंजुलिया मारू राग दे विच गुरु अर्जन देव जी ने 4 शब्द रचे हुए हैं भाई। अंजुलिया सरलेख अधीन 4 शब्द है। प्रश्न आ जाए भी अंजुलिया सरलेख अधीन किन्ने शब्द है जी? 4 शब्द है। गुरु अर्जन देव जी ने अंजुलिया बाणी दे विच किन्ने शब्दों की रचना की है जी? 4 शब्दों की रचना की है। अंजुलिया के नाल संबंधित प्रश्न गुरु अर्जन देव जी की रचना मारू राग विच रची गई है। अर्थ जुड़े हुए हथ, ये विच 4 शब्द अंकित हैं। ठीक है भाई, ये 4 गल्लां तुसीं ध्यान दे विच रखनियां बेटा जी, काम आउणगियां तुहाडे ये उत्थे पेपर दे विच, याद करोगे तुसीं मैनूं।
हाँ जी, एक होर प्रसिद्ध बाणी है जिमें गुरु नानक देव जी की बाणी है जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ आपां पढ़ते हैं, है ना। सिद्ध गोष्ठ श्री गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध बाणी है तो ये है जिहड़ी गुरु नानक देव जी की रचना है। रामकली राग दे विच है ये, गुरु नानक देव जी की रचना रामकली राग विच। सिद्ध शब्द तुहानूं पता ही है, सिद्ध जिहड़ा अक्सर जोगी जिहड़े हैगे उन्हां दे नाम नाल, है ना। सिद्ध जिवें 84 सिद्ध हो गए, है ना, सिद्ध कीता होया जिहड़ा, मतलब गोष्ठ मतलब आपां संगोष्ठी कोई विचार चर्चा जिहड़ी आपां करदे आ, सवाल जवाब ढंग प्रश्नोत्तरी जिहड़ी हुंदी है, प्रश्नोत्तरी ढंग दे विच रचना सिद्ध गोष्ठ है जिहड़ी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 84 ਸਹਿਜ ਜਾਨੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सिद्ध गोष्ठ रामकली राग दे विच रचिया गया है तो रामकली राग है जिहड़ा सिद्ध गोष्ठ की रचना रामकली राग दे विच कीती हुई है भाई। तो रामकली राग ना सिद्ध जोगियां दा एक लोकप्रिय राग है। रामकली भैरों इन्हां रागां दी वरतों करदे सीगे जदों सिद्ध जोगी सी जिहड़े, जदों अपणियां रचनावां करदे सीगे। रामकली भैरों उन्हां दे मतलब कि प्रसिद्ध मतलब लोकप्रिय, उन्हां दे प्रेर मतलब इन्हां रागां दे नाल खास प्रेम रहा है जोगियां दा। रामकली इहदियां जी इस सिद्ध गोष्ठ दियां 73 पौड़ियां है, 73 पौड़ियां दे विच इह रचना की गई है सिद्ध गोष्ठ की। गुरु नानक देव जी की रचना है। सिद्धां दे नाल संगोष्ठी विचार चर्चा का नाम सिद्ध गोष्ठ लिखा गया है। ठीक है भाई, आ गल थोड़ी जी तुसी क्लीयर रखनी है। अगली गल करते हैं जी, सद जिहड़ी बाणी आई है एक, वो भी रामकली राग दे विच है जी। सद बाणी है जिहड़ी ये रामकली राग दे विच सद सिरलेख अधीन दर्ज है जी। ये बाणी है जिहड़ी रामकाली नहीं रामकली, हाँ रामकली राग दे विच है। जिवें जदों आपां पढ़दे हैं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 36 शख्सियतां दी बाणी अंकित है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਦ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਪੜਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਦ। ਅੱਛਾ, ਸੱਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਬੁਲਾਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਖਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੀਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹ ਸੱਦ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੱਦ ਕਾਵ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀਗਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਸੱਦ। ਉਸੇ ਸੱਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ, 3 ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। अंतम समय उपदेश कौन दे रहे ने? गुरु अमरदास जी। तो इसकी रचना करने वाला कौन है शख्स? बाबा सुंदर जी है। अपने अंतिम समय उन्होंने कहा है भी किहड़े विधान विधि विधान किए जान, उसनूं दस्या है। 6 पौड़ियां दे विच यह रचना की गई है। रामकली सद दियां जिहड़ियां पौड़ियां है वो है जी 6 पौड़ियां। ये तुसीं ध्यान दे विच रखणियां चीज़ां। ठीक है जी। सद काव रूप पहला तो ही प्रसिद्ध सीगा।
साडे गुरुआं ने भी इस दी वरतों कीती है। एक मारू राग दे विच ना सोले आउंदे है, मारू राग दे विच सोले। बाणी का नाम है मारू सोले भी कह देंगे हैं। सोले भी ये मतलब की है भी जदों अपने घरां दे विच अखंड पाठ साहिब खोलिया होवे, अखंड पाठ साहिब दे विच जदों की है भी रात दे समय मारू सोले है जिहड़े लोग बड़े प्रेम नाल सरवण करते हैं, ते दूसरे दिन भगत कबीर जी ते बाबा फरीद जी दे श्लोक लोग बड़े प्यार नाल सुनते हैं। तो ये की है मारू सोले है जिहड़े ये मारू राग दे विच अंकित किए गए है। हुण सोले का मतलब वो नहींगा भी किसी दे सोले गाने, किसी की प्रशंसा करनी, सिफत करनी, ये नहींगा। इहदा मतलब ये बनता है भी 16-16 पदियां की एक इकाई नूं कहा जाता है। 16-16 पदियां की मतलब जिहदे विच 16 पदे होणगे, 16 पदियां की एक इकाई होगी, उसनूं कहा जाता है सोलह। शब्द तो ही पता लगता है 16 है ना। हालांकि साडे गुरुआं ने ये जदों रचे है तो उदों इसका कोई मतलब ज़्यादातर तो 16-16 ही है, पर कईयां दे विच इस चीज़ का अतिक्रमण भी किया गया है, 16 तो वध भी है किते किते। सो ये वैसे इसका नाम की है सोले ही रखा गया, मारू राग दे विच है। ये साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मारू राग दे विच है। गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी ने मारू राग विच सोलियां दी रचना की है। पहला गुरु नानक देव जी ने रचे है, गुरु अंगद देव जी नूं छड्ड के गुरु अमरदास जी ने रचना की है, ते उस तो बाद गुरु रामदास जी ने रचना की है मारू सोलियां दी। उस तो बाद की है गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है भाई, गल क्लीयर हो गई। गुरु नानक देव जी दे जेड़े मारू सोले है वो हैगे है जी 22। ठीक है, 22 मारू सोले है। गुरु अमरदास जी दे हैगे है जी 24। गुरु अमरदास जी दे 24 है, ते गुरु रामदास जी दे 2 है। भाई ध्यान च रखनी है गल, 2 ही है मारू सोले, 2 ही पदे है। 16-16 पदियां दे इकाइयां 2 है मतलब। ते गुरु अर्जन देव जी दे है जी 14। जे आपां 22, 24, 2 ते 14 नूं आपां टोटल करिए तां ये है जी इन्हां दी कुल गिणती आउंदी है 62। सो मारू सोले कुल अंकित है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मारू राग दे विच 4 गुरुआं दे कुल सोले है जिहड़े 62 है, जिहदे विचों 22 गुरु नानक देव जी दे, 24 गुरु अमरदास जी दे, 2 गुरु रामदास जी दे ते गुरु अर्जन देव जी दे हैगे है जी 14। ये तुसीं ध्यान च रखनी है बेटा जी मारू सोले। एक होर सिरलेख है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक होर बाणी है जिहड़ी जिहदा नाम है घोड़ियाँ। घोड़ियाँ घोड़ियाँ जिहड़ी है ये तुहानूं पता ही है कि घोड़ियाँ का वैसे आपां शाब्दिक अर्थ करते हैं भी ये जिहड़ियां मुंडे दे विआह समय गाए जाण वाले गीतां नूं आपां घोड़ियाँ कहने हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁਰੇ मतलब ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾੜੇ ਦੀ। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये जिहड़ियां घोड़ियां है ये वडहंस राग दे विच अंकित कीतियां गईयां। इहदा मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये अध्यात्मिक नज़रिए तो है, इहदा नज़रिया होर है। अपने लोक गीतां दे विच अपने विआह शादियां दे विच जिहड़ियां घोड़ियां उन्हां दा नज़रिया होर है। उन्हां दा नज़रिया उन्हां दा मतलब मनोरथ है सिर्फ मनोरंजन करना जां अपना की है भी मनोरंजन हो गया, मनोरंजन दे नाल नाल की है आपां नूं थोड़ा बहुता कुछ नॉलेज नाल मिलदा है। पर इहदे विच की है अध्यात्मिकता दी गल कीती गई है। घोड़ियां वडहंस राग दे विच है जी, वडहंस राग दे विच है। महला चौथा मतलब चौथे गुरु रामदास जी की रचना है। रामदास जी ने इस दे की है भी घोड़ियां दे 2 भागां जिहां दे विच लिखियां, मतलब 2 भाग कुछ लिखे एवें दसदा तुहानूं किवें लिखी है।
ਘੋੜੀਆਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 × 4 ਮਤਲਬ 8 ਪਦੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਪਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ 4 ਦੂਣੀ ਕੁੱਲ 8 ਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪਕ ਵਰਤਿਆ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪਕ ਮਤਲਬ ਘੋੜੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਪ ਬਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਵੀ ਪੰਨੇ ਹੈ, ਵਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਕਹਿ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਅੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 1430 ਅੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 13 ਅੰਗ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅੰਗ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਮਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
अपने इष्ट दी कोई मान लो शुभ कर्म किया जाता है तो शुभ कर्म तो पहला आप कोई मान लो आप अरदास वगैरह करवाने हैं, अरदास बेनती करवाने हैं, है ना। जिवें आप घरे नींह पत्थर ही रखना हो तो वह की करता मिस्त्री कोई गुड़ कोई पतासे मंगाउंदा है ना, अपने हिसाब नाल वो अपने इष्ट अपने देवते नूं अपने गुरु नूं अपने रब नूं याद करके वो कारज का आरंभ करता है। उवें ही ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा ਸਾਹਿਤਕ कारज है बहुत तकड़ा है। ये शुरू करन तो पहला गुरु अर्जन देव जी ने ये विच सब तो पहले नंबर ते मंगलाचरण अंकित किया, मूल मंत्र अंकित किया है। मूल मंत्र है जिहड़ा ये केंद्री स्थान रखता है। जपजी साहिब की बाणी का जिहड़ा पूरा मतलब निचोड़ है मूल मंत्र दे विच अंकित है। जां एवें मतलब एक होर भी है कि पूरी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का निचोड़ है जिहड़ा जपजी साहिब जी दे विच अंकित है ना। ये थोड़ियां कॉमन गल्लां तुहानूं दस रहे हैं। आरंभ दे विच मतलब जपजी साहिब जिथे आरंभ होंदा है उत्थे एक श्लोक दे रखिया है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये श्लोक है। उस तो बाद 38 पौड़ियां लिखियां हुई। अंत दे विच फिर एक श्लोक है। ये हो गया ना प्रबंध काव होया कि नहीं भी एक श्लोक 38 पौड़ियां जिहड़ियां विच है। ये मतलब की है इन्हां नूं मतलब एक जिवें जिवें ला लो भी तुसीं दीवार है एक तरह एक श्लोक है जिहड़ा विच है 38 पौड़ियां। शुरू च श्लोक अंतम च प्रबंध कितना शानदार किया होया, सिस्टम कितना शानदार है है ना। ये जपजी साहिब की तुसीं थोड़ी जी बनतर का ध्यान दे विच रखना है ना। 1 तो लैके 13 दे विचों 1 तो 8 तक तो मतलब की है भी जपजी साहिब जी की बाणी अंकित है। उस तो बाद हैगी है सो दर महला पहला, आसा महला चौथा ते सोहला। एक तो हैगी है सो दर बाणी अंकित है। सो दर ये तो महले पहले दी है मतलब गुरु नानक देव जी की है पहले दी। सो दर एक हैगी है आसा महल एक हैगी है सॉरी हाँ एक हैगी हाँ वही राग आसा महला चौथा। राग आसा महला चौथा। राग आसा महला चौथा। राग आसा दे सिरलेख अधीन है मतलब ये राग मुक्त बाणी भी है। राग आसा महला चौथा ये मतलब की है भी ये राग मुक्त भी है तो राग युक्त भी है मतलब आसा राग दे विच भी आउंदी है। अगे एक दे रखिया है जी सोहला, सोहला साहिब की बाणी दे रखी है अगे। ठीक है जी। लो जी एक ये मतलब की है 8 तक तो यही हो गया तो अगले 5 अंगां ते आ बाणियां दित्तियां हुई। 1 तो लैके 13 तक राग मुक्त है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 14 अंग तो श्री राग शुरू हो जाता है। श्री राग का आरंभ हो जाता है। अंत जिहड़ा हुंदा वो जैजावंती राग दे नाल समाप्त होंदा है। तो उस तो बाद तुहानूं पता ही है श्लोक चल पैंदे है ना। श्लोक है जिहड़े मतलब कबीर जी दे फरीद जी दे श्लोक फिर चल पे पट्टां दे सवैये फिर श्लोक 12 ते वधीक फिर अंत दे विच ओह दिता होया अपने मुंदावणी महला 5वां जिहड़ा दिता होया गुरु अर्जन देव जी की रचना मुंदावणी। फिर उस तो बाद रागमाला भी अंकित की गई है ना। सो यह है जिहड़ा ये जपजी साहिब का तुसीं ध्यान दे विच रखना है सिस्टम। लो भी आ गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल मैं कीतियां ना तुसीं ध्यान च रखणियां। इहनूं वीडियो नूं तुसीं देखियो ते देखियो फिर तुसीं तुहाडे प्रश्न है जिहड़े वो किवें सही हुंदे आ। सत श्री अकाल, रब राखा, ऑल द वेरी बेस्ट।